Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter, new topic, that is the snake trying, from chapter number 9 of English NCERT book, Beehive. Now, as you can see, it has been written by WWE Ross. It's not the WWE that the sports which you watch. There's one sports that is WrestleMania. If you are interested, if you have seen that, so we'll be knowing the abbreviation of his name. What does WWE stand for? So WWE's Rose. His name is William Rickton Eustace Rogge, often misspelled विलियम रिक्सन यूस्टेस रॉज, और कभी कभार मिस स्पेलिंग भी हो जाती है. इट्स रिक्टन, नॉट रिक्सन. And his birth was on June 14, 1894, and he died on August 26, 1966. He was a Canadian geophysicist and poet. So he was a geophysicist also. What does it mean, geophysicist? A person who have more knowledge and have pursued, बहुत अच्छी पढ़ाई करी है उन्होंने जियोलॉजी के बारे में, तो उनको हम जियोफिजिसिस्ट बोल सकते हैं. एक तरीके से साइंटिस्ट है जियोलॉजी में. एंड ही वाज आल्सो अ पोएट. ही वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड पोएट इन कनाडाज टू राइट इमेजिस्ट पोएट्री. ये एक पहले ऐसे कवि थे कनाडा के जिनकी इमेजिनेशन के ऊपर जो है पोइट्री लिखी गई थी. एंड लेटर द फर्स्ट टू राइट surrealist verse, both which have led some to call him the first modern Canadian poet. और वर्स होता है जिसमें राइमिंग स्कीम वगैरह नहीं होता है, उसमें ज़्यादा लिटरेरी डिवाइसेस का जो है यूज़ नहीं किया जाता है. राइमिंग स्कीम हो सकता है बट इट डिपेंड्स. कहीं कहीं पे वी कैन सी द राइमिंग स्कीम एज वेल, बट इसमें राइमिंग स्कीम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा बिकॉज इट्स अ फ्री वर्स. So let's start the snake trying. As you can see here on your screen, it's a small poem. So I'll be explaining the poem and I'll be telling you the summary of the poem. We'll do the question answer as well in the same video. So let's begin. We'll see the word meaning first. Vanishes. Here you can see vanishes. Vanish matlab disappear, गायब हो जाना. Then glides. Glides means move stroke, hitting of the stick. Reeds, water or marsh plant with thick stem, that is called reeds. Pursuing, chasing, following, हम किसी को फॉलो करते हैं या किसी का पीछा करते हैं. कर्विंग, कर्विंग मीन्स ट्विस्टिंग, मुड़ा हुआ चीज़ जिसको होता है हम लोग कर्विंग या ट्विस्टिंग बोलते हैं. So these are the word meanings you will be seeing in the poem. Now the explanation part. So let's read and I'll explain you in the both Hindi and English languages. As you can see, the explanation of English language is written here. However, I'll be explaining it in Hindi as well. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin, long body. How beautiful and graceful are his shapes. So in this stanza, the poet is talking about the snake tries to escape from being hit by the stick that is following it. पोइट बोलते हैं कि स्नेक जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं ना, एक्चुअली वी नो दैट स्नेक इज़ द साइन ऑफ डेथ. स्नेक डेंजरस चीज़ होता है और अगर आपको स्नेक बाइट करता है तो इट कुड लीड टू द डेथ. हाउएवर यहाँ पे इस पोएम में हम देख सकते हैं कि स्नेक इज़ नाउ फियरसम. वो डरा हुआ है, वो बचने की कोशिश कर रहा है, राइट. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि स्नेक इज़ ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम बीइंग हिट. स्नेक जो है मारे जाने के डर से वो बचने की कोशिश कर रहा है. और किस चीज़ से मारा जाएगा, उसको एक स्टिक जो है फॉलो कर रहा है. तो स्टिक कैसे फॉलो कर सकता है, अपने आप स्टिक फॉलो कर सकता है क्या? दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क. इट माइट बी सम पर्सन इज हैविंग दैट स्टिक इन हिज हैंड और वो उसका पीछा कर रहा होगा. As the snake crawls, its body twists and turns, forming fascinating shapes. और जैसे ही स्नेक जो है वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो
एज वी ऑल नो दैट स्नेक स्क्रॉल, स्नेक जो है रिंग रिंग के चलता है, तो रिंग के चलता है तो उसके बॉडी का जो शेप है एक काफ़ी फैसिनेटिंग फॉर्म तैयार कर रहा है, जिसके बारे में पोइट बात कर रहे हैं, जिसके बारे में पोइट लाइक उनको देख के अच्छा लगता है उस फैसिनेटिंग शेप को, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टैंजा. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. Water or marsh, plants with thick stem. The snake moves through the water in order to save itself. The poet pleads to let him escape and hide behind the thick marshy plants as it is harmless. The small green colored snake is harmless even to the children. Now you can see here glides का मतलब मूव होता है, मूव करना. स्ट्रोक का मतलब होता है हिटिंग ऑफ द स्टिक, स्टिक से मारने की कोशिश कर रहा है, राइट. और आपका रीड्स का मतलब होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर में वर्ड मीनिंग देखा था, रीड्स का मतलब क्या होता है, वाटर और मार्श प्लांट्स. तो इसमें देख सकते हैं हम कि स्नेक जो है वहाँ से बचने के बाद जो है भागने की कोशिश करते समय वो खुद को बचाते हुए वो वाटर में जो है घुस जाता है. वहाँ पे जो है पोएट प्रार्थना करते हुए पाए जाते हैं कि उसको जाने दो, उसको छिपने दो, कहीं थिक मार्सी प्लांट के बीच में उसको छिप जाने दे, क्योंकि ये जो स्नेक है हार्मलेस स्नेक है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा. क्योंकि जो स्मॉल ग्रीन स्नेक जो होता है छोटा सा, वो हार्मलेस होता है, वो बच्चों को भी परेशान नहीं करता है. नाउ नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट स्टैंजा. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. Now in this vanishes का मतलब disappear, गायब हो जाना, वो गायब हो जाता है स्नेक बचने की कोशिश करते हुए. ओके, सो इस स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि टिल इट वॉज स्पॉटेड एंड चेस्ड अवे बाय द पर्सन होल्डिंग a stick, it lay quietly in the sand in order to save itself. The snake disappears in the ripples of the water and hides in the camouflaging green bushes of the marshy plant. जब वो मतलब स्पॉट हो जाता, जब जो व्यक्ति हाथ में स्टिक लेकर के उसका पीछा कर रहा था, जब उसको मालूम चल जाता है कि वहाँ पे छिपा हुआ है, और फिर वहाँ तक जब पहुँचता है हाथ में स्टिक लिए हुए, तब तक जो है वो सैंड के बीच में जो है बहुत शांति से लाइक छिप जाता है, और फिर उसके बाद वो वहाँ पे अपने आप को बचा पाता है. उसके बाद कहते हैं पोएट कि द स्नेक डिसअपियर्स, उसके बाद वहाँ से किसी तरीके से छिपा के जो है वो पानी में घुस जाता है, और उसके बाद वो जो आप देख सकते हैं जिसको कि हम पानी में जलकुमड़ी बोलते हैं, उस तरीके के पौधों के बीच में जो है, चूँकि उसका भी कलर जो होता है ग्रीन होता है, और उस प्लांट मार्शी प्लांट में घुस करके वो खुद को बचा पाता है. नाउ इन द एंड द स्नेक्स हिमसेल्फ, स्नेक ने खुद को बचा लिया. सो नाउ वी विल सी द समरी. हम लोग समरी देखते हैं. In this poem, a harmless green-colored snake tries to save itself from being hit by a person who is chasing it with a stick to kill it. इस पोएम में जो है एक हार्मलेस ग्रीन कलर का स्नेक जो है खुद को बचाने की कोशिश करता है, जिसका पीछा एक इंसान हाथ में स्टिक लेके उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है. द पोइट सेज दैट द स्नेक इज़ हार्मलेस इवन टू द चिल्ड्रन. कभी उसके बारे में बोलते हैं कि वो ऐसा स्नेक है जो कि काफ़ी हार्मलेस है और वो बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता. People fear snakes and when they see one they try to kill it with a stick. और लोग चूँकि स्नेक से डरते हैं, तो जब भी कभी स्नेक उनको दिखता है तो उसको डंडे से मारने की कोशिश करते हैं. The snake tries to save itself and hides behind the green colored bushes of marshy plants growing in the water. और इस दरमियान जो है स्नेक खुद को बचाने की कोशिश करते हुए जो है वो बुशेस के बीच में, मार्सी प्लांट्स के बीच में, पानी के बीच में जो मार्सी प्लांट होता है उसके बीच में छिप जाता है और खुद को बचा पाता है.
द स्नेक डिसअपियर्स बिहाइंड द मार्सी प्लांट्स, और उन्हीं मार्सी प्लांट्स के बीच में से वो स्नेक जो है गायब हो जाता है. नाउ विल सी द क्वेश्चन आंसर. सो व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू escape from? You can see here the answer is the snake is trying to escape the person who is chasing it with a stick and trying to hit it. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. इट इज़ अ हार्मफुल स्नेक. इज इट अ हार्मफुल स्नेक? वट इज इट्स कलर? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं. द स्नेक इज हार्मलेस. इट इज़ ग्रीन इन कलर. थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. द पोएट फाइंड्स द स्नेक ब्यूटीफुल. फाइंड द वर्ड्स ही यूजेस टू कन्वे इट्स ब्यूटी. तो इसका आंसर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब द स्नेक आर ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द व्हाट डज द पोएट विश फॉर द स्नेक. द पोएट विशेज दैट स्नेक सेव्स इटसेल्फ. पोएट का विश क्या होता है कि स्नेक जो है खुद को बचा ले, राइट. उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, वेयर वॉज द स्नेक बिफोर anyone saw it and chased it away. Where does the snake disappear? तो इसका आंसर है बिफोर इट वॉज सीन इट वॉज लाइंग इन द सैंड, इट डिसअपियर्ड बिहाइंड द मार्सी प्लांट. वो जब तक उसको देखा नहीं गया था तब तक जो है वो सैंड के बीच में पड़ा हुआ था, छिपा हुआ था, और जब उसको स्पॉट कर लिया गया तो वहाँ से वो निकल के मार्सी प्लांट्स के बीच में जाता है और गायब हो जाता है. नाउ गाइज, one more thing, I told you that we'll see few of the literary device if it is found. However, free verse में उतना literary device का यूज़ होता नहीं है, बट स्टिल कुछ है तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ. चूँकि मैंने आपको बताया राइमिंग स्कीम एब्सेंट होता है फ्री वर्स में, और इसमें आप देख सकते हैं कि एलिट्रेशन जो है एक जगह ही इज़ हार्मलेस, ही इज़ हार्मलेस जो है वहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है. एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स. तो यहाँ पे देख सकते हैं, होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड, ही इज़ हार्मलेस. यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट साउंड का प्रयोग हुआ है. नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो with next chapter, new chapter. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.